start, Amna. मैम आमना पढ़ेंगी? एक सेकंड मैम एक्चुअली मैं पढ़ रही थी मगर लैब असिस्टेंट ने कहा कि मैं पढ़ूंगी। आप नहीं एक नहीं, एक अच्छा आप पढ़ लो, पढ़ लो। पैराग्राफ करके पढ़ लो, ठीक है? एक पैराग्राफ आना पढ़ लो, एक Okay. पैराग्राफ लाइबा पढ़ लो, ओके? जी जी, नो प्रॉब्लम। ओके, स्टार्ट। Bismillahirrahmanirrahim. The day the dam broke. Ma'am, 1 minute. Jamscroft Thurber, who died in 1961, is one of the foremost American humorist of modern times. He worked for some years on the Paris staff of the Chicago Chicago ट्रिब्यून Tribune. शिकागो ट्रिब्यून नाम है। Chicago Tribune, but is best known for his association with the New Yorker, to which his witty articles and amusing drawings attracted many readers. Among his most entertaining books are the Seal in the Bedroom 1932, Let Your Mind Alone 1937, Fables for Our Times 1940, Man, Woman and Dogs 1943, and The Beast in Me and Other Animals 1948. Some entertaining autobiographical details are to be found in My Life and Hard Times. The Day the Dam Broke is a good example of Turber's sardonic but affectionate view of human behavior. ओके, तो यहाँ पे शुरू के अंदर हमें जो है हमारे ऑथर का इंट्रो दिया हुआ है, वो है जेम्स थर्बर। जेम्स थर्बर जो था वो एक अमेरिकन लाइक ऑथर था, राइटर था, जो एक ह्यूमरिस्ट था। हु इज अ ह्यूमरिस्ट? लाइक उन लोगों को ह्यूमरिस्ट कहा जाता है जो अपनी बातों में ना बहुत ज्यादा तंजी अंदाज में बात करते हैं, और मतलब लाइक उनकी बातों में ना कुछ सबक होते हैं ऐसे जो कि हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब वी समटाइम्स से कि यार इसका ह्यूमर कितना अच्छा है, इसका ये अंडरस्टैंड दिस ह्यूमर, इसका डार्क ह्यूमर अच्छा है ये। तो ह्यूमर इज बेसिकली लाइक आपकी समझने की सलाहियत ऑफ द थिंग्स दैट यू सी, और उसके अंदर से आप उनकी मीनिंग्स किस तरीके से निकाल रहे होते हो, ठीक है? अगर आपकी वो सलाहियत ज्यादा अच्छी है तो लोग आपको कहेंगे कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है, इसको हर बात समझ में आ जाती है। अगर आप थोड़े से लाइक डम साइड पे हो कि आपको थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो ये कहेंगे यार इसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही खराब है। तो ह्यूमर इस चीज को कहते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारे राइटर थे, इनकी बेसिकली राइटिंग्स होती ही ह्यूमर के ऊपर थी, बट उसके अंदर थोड़ा सा मॉडर्न टच होता था। ये बहुत पुराने जमाने के तरीके से राइटिंग्स नहीं लिखते थे, इनकी स्टोरी जो थी वो मॉडर्न जो है जमाने से रिलेट करती थी। और हमारी जो पोएम है, सॉरी हमारा जो ये प्रोज है, द डे द डैम ब्रोक, ये जो है काफी अच्छी एग्जाम्पल है। लाइक इसके अंदर जो है ह्यूमर है, इसके अंदर अफेक्शन है, लव है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रीड। My my memories of मैम ये एक नोटिफिकेशन आ रहा है। Okay. My memories of what my family and I went through during the 1913 flood in Ohio I would gladly forget. And yet neither the hardships we endured nor the turmoil and confusion we experienced can alter my feeling toward my native state and city. I am having a fine time now and wish Columbus were here. But if anyone ever wished our city was in hell, it was during that frightful and perilous afternoon in 1930 when the dam broke, or to go more exact, when everybody in town thought that the dam broke. We were both enormed and demoralized by the experience. Grandfather especially
especially rose to magnificent heights which can never lose their splendor of for me, even though his reaction to the flood were based upon a profound misconception, namely that Nathan, Nathan Bedford Forest caval- uh, cavalry, cavalry, nahi, again, ma'am, cavalry. cavalry was the menace we were called upon to face. The only possible means of escape for us was to flee the house, a step which grandfather assembly forbade, brandishing his old army saber in his hand. Let the sun come, he roared. Meanwhile, hundreds of people were streaming by our house in wild panic, screaming, "Go east, go east!" We had to stand grandfather with the ironing board impeded as we were by the inert form of the old gentleman. He was taller than 6 feet and weighed almost 170 pounds. We were passed in the first half mile by practically everybody else in the city. Had grandfather not come to at the corner of corner of Parsons Avenue and Town Street, we would unquestionably have been overtaken and engulfed by the roaring waters. That is, if there if there had been any roaring waters later when the panic had died down and people had gone rather sheepishly back to their homes and their offices, minimizing the distances they had run and offering home and sorry had run and offering various reasons for running. City engineers pointed out that even if the dam had broken, the water level would not have risen more than 2 additional inches. यहाँ तक पढ़ो. In the west, okay, ma'am. Uh, in the west side was all the time of the Thames scars under 30 feet of water, as indeed were all Ohio. Ohio river towns during the great spring floods of 20 years ago. The east side where lived and where all the running occurred had never been in any danger at all. Only a rise of some 95 feet could have caused the floodwaters to flow over High Street. The the thoroughfare that divided the east side of town from the west and engulfed the east side. ओके, सो यहाँ हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है कि हमारा जो ऑथर है वो अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि माय मेमोरीज ऑफ what my family and I went through during the 1913 flood in Ohio, I would gladly forget. अब वो चाह रहा है, वो ये बता रहा है कि जो हम लोगों ने वो मेमोरीज थी मेरी उस फ्लड की सलाह की, मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी मेमोरीज भूल जाऊँ. ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं yet neither the hardships we endured nor the turmoil and confusion we experienced can alter my feeling toward my native state and city. अब वो ये कहते हैं कि लेकिन जो वहां पे हमने सारी मुश्किलात सही, जो हमने सारी कंफ्यूजन सही, वो कभी भी किसी भी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकती जो कि मेरी नेटिव सिटी में होता है. उसकी नेटिव सिटी क्या थी? ओहायो. ठीक है, अब वहां उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं कि हुआ ये था कि लोगों को लगा था कि डैम जो है वो टूट गया, मगर असल में जो वो था वो डैम टूटा ही नहीं था. लेकिन लोगों में ये अफवाह फैल गई थी कि जो है डैम टूट गया है और सैलाब आने वाला है. तो लोग जो है वो सबके सब अपनी जान बचाने के लिए जो है इधर उधर भाग रहे थे. फिर इसमें इसने अपने ग्रैंडफादर का जिक्र किया. ग्रैंडफादर स्पेशली रोज टू मैग्निफिसेंट heights which can never lose their splendor for me, even though his reaction to the flood were based upon profound misconception. ओके, अब उसके जो ग्रैंडफादर थे वो जो है मतलब जैसे बड़े बूढ़े बूढ़े होते हैं ऐसे मौकों पे वो ज्यादातर ना आगे हो जाते हैं कि दे आर लाइक कि हमने तो ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमें ज्यादा जो है नॉलेज है, तो तुम लोग हमारी बात फॉलो करो.
तो उसके ग्रैंडफादर के बारे में वो यही बात बता रहे हैं कि वो उन्होंने भी जो है कुछ इसी तरीके का बिहेवियर जो है वो दिखाया, लेकिन जो वो सोच रहे थे वो वैसा नहीं था, जो उनको लगता था कि होगा वैसा हुआ भी नहीं। उनकी एक मिसकंसेप्शन पे उनकी पूरी थ्योरी बेस्ड थी कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ठीक है। उसके अलावा फिर जो है उन्होंने ये बताया कि जब ये सब स्टार्ट हो गया, लोग परेशान हो गए, लोग पैनिक करना स्टार्ट हो गए, तो उसके जो ग्रैंडफादर थे वो काफी लंबे थे और मतलब 6 फीट उनकी हाइट थी और काफी अच्छा खासा वेट था उनका। तो लोग उनकी बात भी सुन रहे थे कि हाँ भाई ये एक जानदार आदमी है, मतलब लोग होते हैं ना बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत लाइक कमजोर से होंगे, बट ही वॉज नॉट लाइक दैट। वो काफी हेल्दी थे, काफी मतलब अच्छी फिजिक थी उनकी। और वो सबको क्या कह रहे थे, गो ईस्ट गो ईस्ट, वी हैड टू स्टैंड ग्रैंडफादर विद द आयरनिंग बोर्ड। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे थे कि हमें अपने ग्रैंडफादर को रोकने के लिए एक आयरन का बोर्ड लगाना पड़ा था कि आप रुक जाएं, लोगों को जाने दें। ठीक है, क्योंकि वो इतने ज्यादा वो हो गए थे कि मुझे लोगों को बचाना है। वो एक फीलिंग आ जाती है ना दिल के अंदर कि नहीं यार मुझे बचाना है बन को। तो बस वो वाली फीलिंग उनके दिमाग में आ गई थी। एंड ही वाज जस्ट डूइंग ऑल इट। बाद में जो है जब लोग पहुंच गए जगहों पे, सेफ प्लेसेस पे, वहां जाके पता चला कि भाई डैम तो टूटा ही नहीं था, ये तो बिला वजह की अफवाह फैल गई थी, इसकी वजह से हम परेशान हो गए। इसको सुनने के बाद लोग जो थे वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए कि बिला वजह में इतना सारा तमाशा हुआ, और जो है वो अपने घरों को और ऑफिस को जाने लग गए। ठीक है। उसके अलावा वहाँ जो डैम के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि भाई अगर डैम टूट भी गया कभी तो ऐसा नहीं होगा कि सैलाब आ जाएगा। लाइक उसके अंदर इतना सारा पानी है, और जब वो आपकी सिटी इतनी बड़ी है कि अगर वो पानी आएगा भी तो जमीन से सिर्फ 2 इंचेस ऊपर तक पानी आएगा, तो इतना कोई सैलाब वाली सिचुएशन नहीं होगी। हाँ हो सकता है कि रोडों में पानी जब खड़ा हो जाए, बट सैलाब नहीं आएगा। सैलाब इज लाइक सब चीजें बह के जा रही हैं, पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है। लाइक टीवी में देखा हो तो बहुत ज्यादा पानी होता है, लाइक एक्सेसिव क्वांटिटी जो है वो बहुत स्पीड से आ रहा होता है। उसके सामने जो भी चीज आती है वो अपने साथ भाग के ले जाता है। एक वो वाला सैलाब होता है और एक नॉर्मल होता है, यार पानी भर गया है तो आप खड़े हुए आपके लाइक एंकल तक वो पानी आ रहा होगा, लाइक 2 इंचेस। दिस इज हाउ 2 इंचेस। तो अब वो वाली बात यहाँ पे आ गई कि लोगों का मिसकंसेप्शन और लोगों का ख्याल कि अगर डैम टूट गया, और उनके बिहेवियर अभी तक और उनके ग्रैंडफादर का बिहेवियर, ये सारी चीजें यहाँ तक डिस्कस हुई। आगे बढ़ो लाइबा। Okay, ma'am. The fact that we were all as safe as kittens under a cook stove did not, however, as used in the least the fine despair and the ma'am ये क्या वर्ड है? वेयर Despair and the डिस्पेयर द ग्रोटेस्क। Despair and the grotesque ma'am desperation। मेरी आवाज नहीं आई आप लोगों को? grotesque या मैम grotesque आवाज आ लाइबा। रही है? यस यस लाइबा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आई एम सेइंग कि दिस द वर्ड इज grotesque। Grotesque desperation यस यस लाइबा, आवाज कट कंटिन्यू। रही है मैम एक सेकेंड। इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? हेलो। Yes, मैम मैम पहले भी आपकी आवाज सही आ रही थी। ओके ठीक है। द वर्ड इज grotesque desperation। कंटिन्यू रीडिंग। इस वर्ड को स्किप करके आप आगे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं पढ़ दूं? मुझे लगता है लाइबा से इसका नेटवर्क इशू है। ओके चलो जो भी आप पढ़ लो। Okay, which seized upon the residents
of the east side when the cry spread like a grass fire and that the name had given way. Some of the most designified state, cynical, and clear-thinking men in town abandoning their wives. सॉरी मैम, वो Their wives नेटवर्क is, इशू हो गया था. ओके लाइबा, is आमने कंप्लीट कर ले फिर आप कंटिन्यू कर लिएगा. ओके आमना कंटिन्यू. their wives, stenographers, homes, and offices, and run east. There are few alarms in the world in the world more terrifying than the dam has broken. There are few persons capable of shopping to reason when that when that clarion क्लैरियन. clarion clarion cry strikes upon their ears. Even persons who live in towns no nearer than 500 miles to a dam. ओके सो अब यहाँ पे जो है हमारा ऑथर जो है वो एक तरीके की लाइक आयरनी बता रहा है कि अब हम लोग को वो कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत आराम और सुकून से सेव एज अ किटन अंडर द सो, मतलब कि हम तो बहुत आराम से अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन इस फैक्ट को नो नहीं किया जा सकता कि डैम टूटने की खबर सुनने के बाद जो लोग वहां पे थे उनके बिहेवियर कैसा था. मतलब सबको अपनी जान बचाने की पड़ी थी. सबने जो है जो जो लोग मर्द हजरात जो लाइक बहुत अच्छे थे, बहुत स्टेटस वाले थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने भी अपनी बीवियों को छोड़ दिया था किसी अपनी से जान बचाने के लिए. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर ऐसा कोई सीन मतलब हमारे शहर में होता तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता अगर असल में डैम टूट जाता. तो और जो है वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के चला जाता, उसको उनकी परवाह भी नहीं होती क्योंकि एक झूठी खबर के ऊपर उन्होंने इतना सारा वो किया. तो अब जब लोग वो वापस घर गए होंगे तो ऑब्वियसली सबके दिलों में ये बात होगी कि भाई ये तो झूठी अफवाह थी, इसने फिर भी मेरे साथ ऐसा किया, इसका तो बिहेवियर मुझे पता चल गया, इसकी नेचर क्या है. जब अगर असल में हुआ तो ये तो मेरे साथ देगा ही नहीं. जो वाइफ्स होंगी उनके जहन में ये बात जरूर आई होगी. तो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट मेंटालिटी इन दिस पैराग्राफ. ओके Raiva, you can continue. The Columbus, Ohio broken dam rumor began, as I recall it, about noon of 12 March 1913. High Street, the main canyon of trade, was loud with the placid hum of business and the buzzing of placid businessmen arguing, computing, whittling, offering, refusing, compromising. Darius मैम ये क्या वर्ड है? Corningway. Darius Corningway. मैम Yes, Laiba, I said Darius Corningway. on the foremost corporation lawyers in the Middle West was telling the Public Utilities Commission in the language of Julius Caesar that they might as well try to move the Northern Star as to move him. Other men were making their little boasts and their little gestures. Suddenly, somebody began to run. It may be that he had simply remembered all of a moment and engagement to meet his wife, for which he was now frightfully late. Or whatever it was, he ran east on Broad City, probably toward the Mariner restaurant, a favorite place for a man to meet his wife. Somebody else began to run, perhaps a newsboy in high spirits.
Another man, a portly gentleman of affairs, broke into a trot inside of 10 minutes. Everybody on High Street, from the Union Depot to the court house, was running. A loud mumble gradually crystallized into the dread word dam. The dam has broke. The fear was put into words by a little old lady in an electric on, or by a traffic cop, or by a small boy. Nobody knows who, nor does it can really matter. 2,000 people were abruptly in high flight. Go east was to ride the Ross east away from the river, east to safety. Go east, go east, go east. ओके, सो अब यहाँ पे जो हमारा ऑथर है, ही इज टेलिंग के हम जो ये ह्यूमर था, ये जो अफवाह थी, वो फैली कैसे। वो कह रहे हैं कि हाई स्ट्रीट जो था, मेन कैनियन जो था ट्रेड रोड के पास, वहाँ पे जो है सब लोग अपने काम में मसरूफ थे। लाइक लोग जो है वो ऑफर्स कर रहे थे, लोग अपनी बोट साफ कर रहे थे। दिस प्लेस वाज नियर द लेक, नियर द रिवर, सॉरी। तो वहां रिवर के करीब जो थे वो लोग बोट्स पे अपना लाइक लोडिंग कर रहे थे टू गेट देयर ट्रेड टू अक्रॉस द कंट्री और वॉट एवर। तो उसने बीच में देखा कि एक आदमी भागता हुआ जा रहा है ऑन दी टूवर्ड्स द ईस्ट साइड, और वो आदमी लाइक काफी जवान था। सो ही अज्यूम कि हो सकता है कि इसकी और वाइफ की कोई मतलब बात हो, कोई इनका टाइमिंग हो, और ये उसके लिए लेट हो गया हो, तो शायद इसलिए भाग रहा हो। और हो सकता है कि उसने एक जगह का नाम दिया वहां पे कि ब्रॉड स्ट्रीट, के वहाँ विच इज द बेस्ट प्लेस टू मीट हिज वाइफ। तो उसने कहा कि हो सकता है वो वहां जा रहा हो, क्योंकि दैट वाज इन ईस्ट। तो उसके थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक और लड़का भागता हुआ जा रहा है। तो वो उसने उसको भी इग्नोर कर दिया, उसने भी कोई अजम्पशन बना रही कि ये भी किसी काम से जा रहा होगा। फिर उसने देखा कि 3-4 लोग और भागते हुए जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि और सारे लोग जो है वो उसी डायरेक्शन में भागते हुए जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद आधे से ज्यादा लोग उस डायरेक्शन में भाग रहे थे विथ ऑल देयर लाइक माइट एंड पावर। पूरी ताकत के साथ वो लोग भाग रहे थे, बहुत तेजी से भाग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जो है उसको आवाज आती है कि डैम टूट गया। और ये आवाज कौन लगाते हैं, एक ओल्ड लेडी होती है जो ये आवाज लगा रही थी कि डैम टूट गया, डैम टूट गया, अपनी जान बचानी है तो ईस्ट की तरफ भागो। और मतलब ये वाली र्यूमर जब फैल जाती है, लाइक उनको ये नहीं पता होता कि ये स्टार्ट किसने किया, किसने कहा कि डैम टूट गया, किसने बोला कि किसने मतलब सच में डैम टूटा भी है या नहीं। लेकिन ये र्यूमर अफवाह फैल गई कि भाई डैम टूट गया, और सबके सब ने भागना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। तो बस ये सीन हुआ, और उसके बाद जो है वो सारा हैवक हो गया। लाइक लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए भागने लग गए, सब पैनिक वाला माहौल आ गया। और लोगों ने लाइक मैंने फर्स्ट पैराग्राफ से ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि उन लोगों ने मेरी वाइफ और इन सब चीजों को पीछे छोड़ दी, सब अपनी जान बचाने के लिए। So this was all that happened because of a rumor. अगर असल में हो जाता तो you can imagine कि क्या हालात होते, हालात इससे भी ज्यादा बुरे होते। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप करते हैं, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट तक से क्लास का टाइमिंग खत्म हो चुका है। एनी क्वेश्चन, अभी तक कोई बात समझ में ना आई हो?